یہ حضرات غلط کرتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کا مسئلہ ہے، کسی کی ذاتی انا کا اور ایغو کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر اس بندے مومن کو جواب دینا ہوگا جو ایسی غیر معتبر باتوں کو اعلان کر کے لوگوں کے روزے کھلواتا ہے یا روزے رکھواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ معزز سامعین کرام، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تبارک و تعالی بمقام آخر، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في مدح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ آج شعبان المکرم کی 30 تاریخ ہے، کل یکم رمضان المبارک ہو جائے گا، اور آج رات سے انشاءاللہ تراویح کا اہتمام بھی ہوگا، جو لوگ کرنا چاہیں گے اپنے گھروں میں۔ رمضان المبارک اس سے پہلے آتا تھا تو دلوں کی کلیاں کھل اٹھتی تھیں، جذبات موجزن ہو جاتے تھے، عبادات کے لیے ایک ولولہ، ایک جوش ہوتا تھا، مسجدوں کے اندر ازدحام، کراؤڈ جب بڑھتا تھا تو یاد الہی کی لذتیں بڑھ جایا کرتی تھیں۔ مگر وہ وقت بھی اللہ ہی کا تھا اور یہ وقت بھی اللہ ہی کا ہے۔ ہم بندے ہیں، ہماری سرشت میں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کے ہر حکم کی فرما برداری کریں۔ کرونا وائرس کا یہ حملہ اور یہ وبا جو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، کروڑ مسلمان اپنے جذبات کو سمیٹے ہوئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ میرے مالک اس وبائی امراض سے پوری دنیا کو نجات دے دے۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ رمضان المبارک کی یہ برکتیں جو تو نے عطا فرمائی ہیں، تیری رحمت اور مشیت اگر ہوتی کہ ہم مسجدوں میں اس کو اہتمام کے ساتھ ادا کرتے تو یہ ہمارے جذبات کی ترجمانی ہوتی، مگر تو قادر مطلق ہے، تیری قدرت میں کسی کو دم مارنے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے میرے مالک تیری مشیت، تو جو چاہے جیسا کرے۔ رمضان مبارک کے موضوع پر آنے سے پہلے میں ایک وضاحتی بیان عرض کر دوں۔ چاند کے تعلق سے جو ایک تشکیکی مفہوم اور ذہنیت پیدا ہوئی، اس کی وضاحت ضروری ہے، اس لیے کہ میں ایک ذمہ دار ہوں، کوئی 25-30 سال سے رویت ہلال کمیٹی کی اس ذمہ داری کو نبھا رہا ہوں۔ پہلی بات یہ جان لیجئے کہ چاند کے اعلان کرنے کی ذمہ داری یہ خالی لفظی نہیں ہے، بلکہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر آگ کے دہکتے ہوئے شعلے پر بیٹھا دیا جائے تو آدمی منظور کر لے، مگر اتنی بڑی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا۔ غلط اعلان پر جو لوگ روزہ رکھیں گے یا عید کریں گے تو جتنے لوگوں کی غلطیاں ہوں گی ان سبوں کی ذمہ داری اس اعلان کرنے والے معلن اناؤنسر کے اوپر ہوگی جس نے یہ اعلان کیا ہے۔ تو اس لیے حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ قرآن نے بتلا دیا ہے کہ یہ رسول، تم سے لوگ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دو یہ چاند حج اور لوگوں کے وقت بتانے کے لیے ہے۔ یا ایک مسئلہ اور واضح کر دوں کہ جو مسئلے منصوص ہوں
यानी जो कुरान और हदीस से साबित हों उसमें कोई क़ियास या इज्तिहाद की गुंजाइश बाकी नहीं रहती है। ये मसला कुरान ने भी बयान किया है और हदीस पाक में तो इसकी इतनी सराहतें आई हुई हैं जिसका कोई हद ही नहीं। आपने हमेशा उलमा की ज़बानी सुना है कि सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही फ़इन उग़मिय अलैकुम फ़क़्दिरू लहू सलासीन। चाँद देख करके रोजे का महीना शुरू करो, इफ्तार करो, और चाँद देख करके रोजा को शुरू करो और चाँद देख कर रोजा का इफ्तार करो, यानी ईद करो। तो जब एक चीज मंसूस हो चुकी है इसमें दम जदने की गुंजाइश नहीं। मसला यह है कि अगर अगर होराइजन क्लाउडी हो, डस्टी हो, अब्र आलूद हो, गुबार हो उसके ऊपर, तो ऐसी सूरत में एक आदिल मर्द और औरत की गवाही भी काबिल कबूल होगी। लेकिन अगर मतला बिल्कुल क्लियर हो, कहीं दूर दूर तक कोई ना गुबार है ना अब्र है, तो ऐसी सूरत में फिर शरई मसला यह है कि एक जम्मे गफीर उसको देखे और ऐलान करे तो जाकर के फिर वो काबिल कबूल होगा। इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर बहुत सारी फ़िक़ही किताबों का हवाला देते हुए ये इबारत नक़ल फरमाई, शर्तुल कबूली इंद आदम इल्लतिन फ़िस समाई लिहिलाल अस्सौम अबिल फ़ित्र इख़बार जमईन अज़ीम। इरशाद फरमाते हैं कि जब आसमान साफ हो तो हिलाल यानी रोज़ा व ईद के कबूल को जमात अजीम की खबर जरूर है, इसलिए कि बड़ी जमात की वो भी चाँद देखने मसरूफ थी, इसमें से सिर्फ 2-1 शख्स को नजर आना, हालांकि मतला साफ है, इन 2-1 की खता में जाहिर है। यहां से लेकर के ह्यूस्टन, डैलास और कैलिफोर्निया, हर जगह कल का वेदर इतना क्लियर था कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इससे अच्छा वेदर क्या हो सकता है। हमारे यहां मुकम्मल कोशिश की गई, नजर नहीं आया। कैलिफोर्निया में जो हमारी रूयतलाल कमेटी के लोग हैं, वहां पे हैवेट में, यूबा में, सैन फ्रांसिस्को में और एक जगह और याद नहीं आ रहा है, इन सारी जगहों पर भी वेदर इंतहाई क्लियर था, मगर किसी को नजर नहीं आया। एक दो की बात नहीं कि पूरा मजमा देख रहा था, मुसलसल देखते रहे, किसी को नजर नहीं आया। अब उसके बाद ये ऐलान करना कि चांद देख लिया गया है, यकीनन ये शक के साथ आता है ये, और इसमें फिर किसी भी सूरत से चांद का यानी रमजान का ऐलान करना ये जायज नहीं हो सकता है। और अगर क्लाउडी हो, गुबार आलूद हो, तो सूरत में भी फतावा रज़विया शरीफ ही में फरमाया गया है कि वफी काफिल हाकिम अल्लज़ी हुआ जमा कलाम मुहम्मद फी कुतुब ज़ाहिर रवाया तुक़बल शहादतुल मुस्लिम वल मुस्लिमत अदलन काना औ गैर अदलिन बाद यशहुदा अन्नहु रअल खारिज अल मिस्र औ अन्नहु रअ फी मिस्र माइलतिन तमना अल आम्मा। कह रहे हैं कि और अगर क्लाउडी है, बादल है, गुबार है, तो ऐसी सूरत में रमजान में एक मुसलमान मर्द या औरत आदिल या मस्तूरुल हाल की गवाही मकबूल है, जबकि गवाही दे कि उसने जंगल में देखा या शहर में देखा। ऐसी सूरत में जब हम ये बात देख चुके कि न क्लाउडी है, न गुबार है, डस्टी है, कुछ भी नहीं, वेदर क्लियर है, अब सवाल ये होता है कि आखिर इतने लोगों को क्यों नजर नहीं आया और सिर्फ एक आदमी या 2 आदमी को क्यों नजर आ गया। इसलिए ये बात यही शक पैदा करती है, शरीयत में इसके कबूल करने की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा मैं अपने अहबाब से, भाइयों से, इस्लामी भाइयों से यही कहूंगा कि जो मसला शरई हो उसको वहीं तक रखा जाए, उस पर ज्यादा बहस ना की जाए। जब ये बात तयशुदा है कि इतना वेदर क्लियर होने के बावजूद भी किसी को नजर नहीं आया और बाद लोग ऐलान कर रहे हैं, अगरचे वो बात सच भी हो, जब भी शरीयत उसको कबूल नहीं करेगी। इवन अपने आंखों से देखा उन लोगों ने, जब भी यहाँ शरीयत को कबूल नहीं करेगी। इसलिए कि अब जरूरी है कि वो
एक जम गफीर होना चाहिए, बड़ा क्राउड होना चाहिए। और बड़े क्राउड के लिए फिर ये काजी की साबत राय पर डिपेंड करता है कि वो कितने लोगों को कबूल करेगा कि जिसकी बुनियाद पर इसको शहादत का दर्जा दिया जा सकता हो। ये मेरी गुजारिश थी। दूसरी बात ये है कि जो हजरात चाँद के ताल्लुक से बड़ी इमोशनल गुफ्तगू करते हैं, मेरे ख्याल में शायद उनको चाँद के ताल्लुक के जो हवाला जात हैं, जो रिक्वायरमेंट हैं, वो बिल्कुल मालूम नहीं है। इसलिए हर कसो नाकस इसमें बोलना शुरू कर देता है। मेरा एक मजमून इसी के हवाले से इस हफ्ते के पाकिस्तान पोस्ट के अंदर शाया हो चुका है। आप हज़रात उसको देख लीजिए जाकर के, उसमें सारी चीजें मैंने बयान की हैं। कहना यह है कि अगर चांद का कहीं ऐलान हो भी जाए कि साहब चांद देखा गया है, तो उसको किन जराए से हासिल किया जाए। जाहिर सी बात है, एक आदमी न्यूयॉर्क में चांद देखता है, कैलिफोर्निया में देखता है, फ्लोरिडा में देखता है, कहीं देखता है इस तरह से, तो उसको हासिल करने के जराए क्या है जिसको शरीयत कबूल करती है। उसमें से सारी चीजें हमने मेंशन कर दी हैं कि रूयत है, शहादत है, शहादा है, किताब कादी वगैरह 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 वगैरह। तो जो हजरात इस किस्म की बातों का फौरन ऐलान कर देते हैं, वो इनमें से किसी को फॉलो नहीं करते हैं, किसी को फॉलो नहीं करते। फोन से खबर आई, हेलो फला जगह चांद देखा गया है, बात किया चांद देखा गया है, हाँ गया, ऐलान कर दिया। ये वो हजरात गलत करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ये अल्लाह ताला की इबादत का मसला है, किसी की जाती अना का और ईगो का मसला नहीं है। ये क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में हर उस बंदे मोमिन को जवाब देना होगा जो ऐसी गैर मुअतबर बातों को ऐलान करके लोगों के रोजे खुलवाता है या रोजे रखवाता है। अल्लाह ताला हमें बचाए। इमाम आज़म हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को क़ज़ात का मनसब पेश किया गया, जस्टिस बनाना था, उनको चीफ जस्टिस बनाना था, तो आपने सख्ती के साथ मना कर दिया, मैं इसको कबूल नहीं कर सकता हूं। क्यों? इसलिए कि अगर जरा सी गलती हुई तो क़यामत के दिन मुझको इसका जवाब देना होगा। और यहां तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई खिलौने की बात है, जिसको देखो बहस कर रहा है। अभी मैंने सुबह उठ करके देखा व्हाट्सएप के ऊपर, तो तकरीबन 200 के आसपास मेरे मैसेज थे और वो अजीब डिस्कशन की थी। वहां से नहीं करना चाहिए मेरे अजीजों। जो उलमा ऐलान करें, मोतबर उलमा ऐलान करें। 30 साल हो रहा है, तकरीबन 28 साल हो रहा है इसमें मुझको यहाँ पे रहते हुए मैं ऐलान करता हूँ। मैंने यहाँ बहुत तहकीक की, रात रात गुजार दिया करता था चांद के सबूत के लिए मैं। और जब बात करते 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 पहुंचती थी तो क्या हुआ था कि सऊदिया ने ऐलान कर दिया है। ये थी बात होती थी। इस बुनियाद पर इसको वहीं पे रखें जहां तक है बात। रूयत हिलाल कमेटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका एक बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक्स इदारा है, बहुत तहकीक और कुरान और हदीस के बिहाफ, अक़वाल सल्फ के बिहाफ इसका ऐलान होता है। मैं जिम्मेदार आदमी हूं, लिहाजा इसमें कोई डिस्कस ना कीजिए। कल पहला रोजा होगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।